नमस्कार फिर विद्यार्थियों। आज मैट्रिक स्पेस कोर्स एंड हो चुका है, तो मैट्रिक स्पेस में यह स्टूडेंट्स की फीडबैक है, उसको आज हम पढ़ेंगे। और ये प्रतिक्रिया पत्र पूर्ण रूप से गोपनीय था, तो आई डोंट नो हु रोट व्हाट, किसने क्या लिखा है इस विषय में मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है। तो इसमें सभी लोग मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं पढ़ाने के विषय में, और जो उन्होंने अच्छा सीखा उसके विषय में भी बात कर सकते हैं। तो इसमें जो प्रश्न सम्मिलित थे वो इस प्रकार थे कुछ। प्लीज शेयर योर overall experience of the course. Write at least 4-5 lines. Anything you felt good or critical. How would you rate overall learning experience? Did the techniques and strategies taught in the class improve your problem solving? How helpful were the assignments in the understanding the concepts? What was the most valuable thing you learned in this course? Any suggestions to improve future courses? Would you recommend this course to other students preparing for exams or interviews? After completing this metric space course, how do you feel about CSAT NET GATE exams? Questions from this topic. Okay. सो नीचे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे सभी विकल्प। तो देखते हैं विद्यार्थियों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं। चलिए सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। प्लीज शेयर योर ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द कोर्स। तो मैंने जैसा कि कहा, किसने क्या लिखा है हमें नहीं पता है, चलिए पढ़ते हैं। गुड, चलो ठीक है, अच्छा है। Overall experience was good. I found some topics very interesting, but there were few topics towards the end that were done quite fast, so I couldn't develop much understanding of those. अच्छा, तो इसके विषय में मैंने जैसा कि कहा, हमने कोर्स को लगभग ठीक समय में ही पूरा किया है। जैसे हम 12 अगस्त से प्रारंभ कर रहे थे, तो 19 सितंबर को समाप्त किया है। तो थोड़ा सा आप लोगों को घर में समय देना होगा, ठीक है। आप दोबारा उनकी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। चलिए, my overall experience is very good and I learned so many things. Sir explained each and every concept with ease and I learned many new concepts. Okay. Earlier, my biggest weakness was that although I spent a lot of time studying, I did not know the right approach and was moving in the wrong direction. Okay. Your exceptional and inspiring teaching along with your amazing approach to explaining concept made me realize how to study systematically and approach questions step by step. I truly appreciate the clarity, patience, and motivation in your guidance, which not only developed my critical thinking but also taught me how to study other subjects effectively. Overall, this course has been a wonderful and enjoyable experience, and your guidance has given me a new way of learning, greater confidence, and clear direction of my preparation. तो सबको समझ में आ गया ना? अनुवाद करना है तो बता दो। ठीक है, ठीक है। जहां अनुवाद करना होगा तो मुझे बता देना। आई हैव रियली एंजॉयड थ्रू द course. I have learned lots of problem techniques and how to approach new problems. Every assignment problem was really good and interesting. मैं कुछ ऐसा सीखा जैसा मैंने इससे पहले नहीं सीखा था। अच्छा, चलो वो क्या था हमको भी बता दो। इससे पहले बताओगे? चलो ठीक है, अच्छा है। हाँ। पीरियडिक मैट्रिक ओ, तो टोटल तुम थी 12 वो। हम तो सैकड़े नहीं थे। सर, सलोनी, सलोनी ने भरा ही नहीं है फॉर्म। हम तो ये सोच रहे थे। सर मैंने फॉर्म भरा है। अरे सर तुमने मैंने फॉर्म भरा है सर। आज तो तुम बहुत देर में आ रही हो। सर मैंने आपको मैसेज किया था ना, फिर आपने जो रिप्लाई किया तो मुझे लगा कि शायद होना चाहिए मुझे यहाँ पे, तो मैं आ गई। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मैंने इट वॉज रियली गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। टीचिंग स्टाइल ऑफ ललित सर इज यूनिक एंड इजिली अंडरस्टैंडेबल। मेनली द learning environment is good as the student can interact with each other as well as with Lalit sir. Okay, basic concept has been taught very carefully. Assignment were really good. तो ये लाइन बाय लाइन जा रहा हूँ मैं, अलग अलग स्टूडेंट के हैं। हाँ, द कोर्स वाज गुड एंड आई लर्न अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स दैट आई हैड मिस्ड इन माय एमएससी। आई हैड ट्रबल डूइंग प्रूफ्स एंड असाइनमेंट। तो बहुत ही लोगों को मदद हुई है, मतलब सहायता हुई है, ऐसा दिखाई पड़ता है। वेरी गुड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट हेल्प मी टू एग्जामिन the problems of the metric space, to understand and examine the solve them with correct concept instead of VC sense that I can solve problems or not. Exploring different flavors of problems is most important thing I learned here. Thank you. उन्होंने लिखा है। हाँ, तो मेरी तरफ से भी थैंक यू। अच्छा, तो सर पहले मैट्रिक्स शायद शब्द सुनते ही दिमाग चकराने लगता था। कोर्स के बाद अब कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि लगता है मैं सब्जेक्ट के साथ अखाड़े में दंगल खेले।
उधर आ जा सकते ये शब्दावली पहचान सी आ रही है कुछ। हाँ वो बात अलग है, अभी सुमो रेसलर है सब्जेक्ट और मैं पिद्दी पहलवान। बट इस कोर्स ने दिखाया कि हाउ टू थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड हाउ टू अप्रोच द कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम्स। मुझे अभी कॉन्सेप्ट में लूप होल्स फिक्स करने हैं, वो मैं रिकॉर्डेड देख के कर लूंगा। यार कौन है ये? मैं पिद्दी पहलवान। वैभव तुमने तो नहीं लिखा है? सर मैं पिद्दी पहलवान नहीं हूँ। तुम क्या मानते हो? हमें पहलवान खली मानते हो? नहीं सर, मैं क्या कहूँ अब आपसे। बताओ तो, कुछ तो कहो। सर सर आप बैडमिंटन खेलते हो? अच्छा मैं खेल सकता हूँ मैं, पर खेलने का शौक नहीं। अच्छा, किसी तो खिलाड़ी सर की बात एक करना चाहते हो शायद। चलो ठीक है हाँ अगला। पर ये तुम्हारी शब्दावली लग रही है मुझे। सर मेरी नहीं है, मेरा जब आएगा मैं बताऊंगा आपको मेरा कौन सा बच्चा है। आपको किसकी शब्दावली लग रही है? बताओ तो, एक सर ये बच्चा। सलोनी की शब्दावली लग रही है। है ये सलोनी? सब मैं नहीं करती हूँ सर, आपको अच्छे से पता है मेरा मेरा फीडबैक बिल्कुल टू द पॉइंट रहता है। मैं कभी भी इतना नहीं लिखती और इतना कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मुझे पता है इस और कोर्स में एक ही स्टूडेंट है जो टू द पॉइंट बात करता है, वो तुम ही हो। और सर मैं भी कहीं से भी पिच्ची पहलवान नहीं हूँ। मुझे किसी को मैं किसी के सामने कम नहीं हूँ मारने पीटने के मामले में। अच्छा अच्छा, ये तुम्हारा नहीं है। चलो हम तो ऐसे पूछ रहे हैं किसका है। चलो ठीक है, तुम बिल्कुल सर बट एक प्रति। बात है कि जो 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 आदमी ऐसा फीडबैक देता है उसे सर एटलीस्ट एक्सेप्ट करने का दम तो रखना चाहिए सर कि मैंने ये रिव्यू लिखा है। ये देखो ये ना, अभी वो कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? मतलब उत्सुक कर रहे हैं व्यक्ति को कि फंसाने का बच्चों इरादा। कौन हो आप, बताओ आगे निकल कर आओ। ठीक है, उन्होंने सही लिखा है, उन्होंने शब्दावली अच्छी प्रयोग की है। चलो अच्छा लगा वैसे ये रिव्यू पढ़ के, सबको हंसी आई ना? बट ठीक है, अच्छा है। हाँ अच्छा चलो आगे, मुझे लगता है कुछ और आना है। और आ रहा है, यहाँ हंसी के इमोजी दिखाई पड़ रहे हैं। थैंक यू ललित सर, आप जितने प्रोफेशनल हो उतने ही पोलाइट, हम्बल और ह्यूमरस भी। आपके लेक्चर्स सब टॉपिक्स को अप्रोचेबल बना देते हैं और क्लास में हमेशा एंगेजिंग होती है। क्लास हमेशा एंगेजिंग होती है। और सर जो आप बीच बीच में ना कभी कभी संगीत की तान छेड़ देते हो, उससे क्लास और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। बस एक रिक्वेस्ट है, कभी एक पूरा गाना सुना दीजिए क्योंकि आपकी आवाज तगड़ी है। वो सर हाँ। लेकिन आपका गाना तो मैंने सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स में एक बार सुना है। यहाँ पे तो आपने तान कभी नहीं छेड़ी है। तो तुम तान छिड़वाना चाहती हो? सचेड़िया मुझे सुनना ही नहीं, सुन लेंगे। अच्छा वो कल ऐसा हुआ था, कल अनम्यूट रह गया था, मैंने बोला था बच्चों से करो, वो रिकॉर्ड में नहीं हुआ। तो मैं ऐसे ही गाना गाने लग गया। तो वो ऐसे पहाड़ी गाना था तो किसी को समझ में आया नहीं। सो फिर उसके बाद उसका अर्थ मैंने बता दिया था। चलो ठीक है, इसीलिए इन्होंने लिखा है। पर ये संगीत सर की तान छेड़ देते हो ना, ये मुझे वैभव ने लिखा है लग रहा है। वैभव तुम हो क्या? सर मैं जहाँ मेरा कमेंट आएगा मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मैंने आपसे कह दिया है। नहीं तो मैं सर बता ही दूं मैंने लिखा क्या है अभी, ताकि नहीं आप हर नहीं कमेंट चलो। पे मेरे नाम को एक्सक्लूड कर दो। अरे चलो ठीक है ठीक है ठीक है। ये किसने लिखा है, कोई बता सकता है क्या? अगर बताना चाहो तो, वैसे बताना जरूरी नहीं है। अच्छा है, अच्छा है, मतलब ये सारे रिव्यूज अच्छे लग रहे हैं। हाँ, मुझे आई लव ऑल दीज रिव्यूज। ठीक है, ये भी अच्छा है। तो आई फाइंड द कोर्स परफेक्ट एंड लेक्चर्स कंटेंट वे ऑफ टीचिंग एंड एक्सप्लेनिंग द असाइनमेंट्स द theorems that I found very hard to understand during my college course and proofs I skipped for that region I understand clearly now. Also I learned how to use them through problems I practiced during lectures and assignment. I never like metric space but now I'm getting more comfortable with it and enjoying it. हाँ यही मेरा उद्देश्य था कि आप ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस करोगे, आपको ये देखोगे कि कहाँ पे एग्जाम में मेट्रिक स्पेस के क्वेश्चंस हैं, ऐसा आपको लगना चाहिए। तो अच्छा है।
ठीक है, अगर आपका रिव्यू आए और आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, मैंने लिखा था करके। सो it was a nice experience for me and I have learned a lot during the course. Classes were detailed and organized. Overall, I found it effective. सर आपकी एक्सप्लेन करने का स्टाइल मस्त है, मैंने पहले भी मेट्रिक स्पेस पढ़ा है, बट आपकी ग्राफ वाली एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा था, उससे बहुत कुछ अच्छे से समझ में आया। मैं प्रूफ में फोकस नहीं करती थी, बट अभी फोकस कर रही हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट अब ठीक है। कौन? सर ये कोई लड़की होगी, हाँ, कर जैसे रही हमको हूँ पता ही बोला है नहीं है, ना। ये सर ये बंगाली तो वैभव खुद ही नहीं है, हमको पता चल जाता है। क्या? मैंने कहा ये सिर्फ बंगालियों को पता नहीं लगता कि लड़का है लड़की है, बोलने में भाषा में हमें तो पता लग ही जाता है। ये देखो, अच्छा तुम्हें कैसे पता रही है ये लड़की है? सर वो लिखा है ना, कर रही हूँ, फोकस कर रही हूँ। अच्छा, तो ये बता रहे हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, अब तुम ठीक सही हिंदी सीख गई हो फिर। चलो ठीक है। सर लेकिन इसमें एक बात और भी क्लियर है कि वो बंगाली लड़की नहीं है। क्या? सर वो बंगाली लड़की नहीं है सर, ये भी क्लियर है। हाँ देखो, सुलोनी की बुद्धिमत्ता देख रहे हो तुम, क्यों बंगाली लड़की नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? चलो। सर वो लोग कहते हैं, मैं बता रहा हूँ। वो लोग हमेशा जेंडर को गलत करते हैं और स्त्रीलिंग को जल्दी इस्तेमाल ही नहीं करते, पुल्लिंग मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। अच्छा नहीं, ऐसा सबके साथ नहीं होता। समन्विता तो पूरी सही बोलती है ना, समन्विता तुम सही बोलती हो ना? कभी कभी गलत भी बोलती हूँ, अच्छा ठीक है। लेकिन ये वैसा मेरा नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, हमें पक्का है तुम्हारा नहीं है। सो कहीं कोई गलत फहमी ना हो जाए तो पहले ही क्लियर कर दिया समन्विता ने। चलो, टू अ न्यू लर्नर it is very friendly course with a lot of pictures and visually how to think about a proof by image and device way to write proofs. Okay, this is first time I have learned the entire course on metric spaces. I always used to be afraid of studying things like compactness, connectedness, Argyll-Ascoli theorems, etc. But now I am very happy and satisfied that I have learned these things very precisely. Also the assignment helped me understand the concept more deeply. सबको अच्छा लगा है मतलब। Overall it was good experience and every experience to learn the topic in good way. It was detailed with amazing questions and explanation. The assignment are mind blowing. जो अब एक जैसे हैं उनको जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ, the actually enjoyed the course. One of the few courses in which I didn't miss a single class. ओ, एक भी क्लास मिस नहीं की। कौन है? मुझे अच्छी बात है, एक भी क्लास मिस नहीं की। लर्न अ लॉट, गॉट अ डिफरेंट perspective to approach problems. I could also follow proofs all of the theorems as they were nicely explained. So yeah, overall it was cool. सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, और मैं ये बात इस कोर्स से रिलेटेड नहीं, ओवरऑल मेरी अभी तक की जर्नी एंग मैथमेटिक्स में के बारे में मैं बोल रहा हूँ। मुझ जैसे लोग सिर्फ पेपर के लिए पढ़ते हैं। अच्छा, और उसमें भी आलस और प्रमाद करते हैं आपके साथ। नहीं नहीं, मतलब प्रमाद करते हैं, यहाँ पे ये फुल स्टॉप देना चाह रहे हैं तो लिखने में ध्यान रख दें। हाँ, ये नहीं तो देखो इससे क्या अर्थ आता है, प्रमाद करते हैं आपके साथ। लेकिन हम तो समझ गए। ठीक है, प्रमाद का अर्थ सर वो आलस्य होता है। प्रमाद क्या होता है? आलस्य, आलस्य, प्रमाद का अर्थ आलस्य होता है। तो जैसे हम प्रमाद करते हैं, यहाँ पे उन्होंने फुल स्टॉप रखा है आपके साथ, मतलब रखना वो चाहते हैं, ऐसा समझिए। आपके साथ पढ़ता हूं तो मैं लगभग डेली 6-7 आवर पढ़ लेता हूं। पहले मैंने कभी 3-4 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं की, कभी एक दिन में। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है आपके साथ सर। थैंक यू। अच्छा आप बताओ रिया, ये लड़की है या लड़का? सर आई थिंक ये लड़का है। क्यों? लग रहा है ऐसे, मतलब सुना है इतना। ये यहाँ पे लिखा है ना, ये Gut आपके साथ feeling. पढ़ता हूँ तो। पढ़ता हूँ, हाँ सर, हाँ। कोर्स इज गुड नहीं बट सर, ये अनफॉर्चुनेट। डेफिनेटली ये लड़का ही है, क्योंकि क्यों भाई? जो इतनी शुद्ध हिंदी इस्तेमाल करेगा प्रमाद वाली, तो वो हाँ सर, वो मतलब प्रमद वाली जेंडर कोई में तो गलती नहीं करेगा। बेंगोली नहीं होगा। अरे अच्छा, ये तो बात ठीक है, वो जेंडर में गलती नहीं करेगा, ये सही है। नहीं तो मुझे लगा था ये वैभव कह रहा है कि इतनी शुद्ध हिंदी लड़का ही प्रयोग में ला सकता है, ऐसा मुझे लगने लगा।
सर आपके द्वारा पढ़ के अगर ये बच्चों वाली रीजनिंग मैं दूं तो सर अच्छा ही लगेगा ना। नहीं नहीं, मतलब पहले कहने से ऐसा दिखाई पड़ा, मैं बोल रहा हूँ ठीक, बाद में तुमने सही कह रहे हो तुम, वो मतलब उसमें गलतियां नहीं करेगा, ये सही है। तो ठीक है, ये बंगाली भी नहीं है, पक्का है आप। चलो सर नहीं, इतनी पर शुद्ध हिंदी हम में से अरे तुम किसकी क्या बंगाली किसकी से है? ज्यादा शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं, ये तुमको मैं बता दूं। अगर शुद्ध उन्हें बोलना हो तो, और उन्हें ज्यादा शब्दों के अर्थ पता हो सकते हैं शुद्ध हिंदी के। मैंने ऐसा गौर किया है, कभी भी किसी बंगाली के सामने कितनी ही शुद्ध हिंदी बोल दो, उसने ये नहीं कहा है कि मुझे इस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया। परंतु जो हिंदी भाषी हैं उनके समक्ष हुआ है ऐसा, और उसका कारण सिर्फ ये है कि बंगाली में संस्कृत निष्ठ शब्द हैं, उनको समझने में कोई समस्या नहीं है। कोई बंगाली कभी ये नहीं कह सकता कि मुझे ये वाला शब्द समझ में नहीं आया। बहुत ही ऐसा मतलब वो है, रेयर चांस है, विरल चांस है ऐसा, आप देख लीजिएगा। तो इसलिए शुद्ध हिंदी के विषय में ना बंगाली को कम मत समझना है, ये मैं बता देता हूँ। भले ही वो बोल नहीं सकता है, परंतु वो समझ बिल्कुल एक अक्षर सा सकता है। आप कभी प्रयोग करके देख लीजिएगा। सर हाँ, हम लोग बोल भी सकते हैं क्योंकि हम लोग मतलब जो कविताएं पढ़ते हैं वहां तो शुद्ध हिंदी होता है ना, अच्छा लेकिन हम बोलते नहीं है, चलित भाषा बोलते हैं जो हमारे इधर चलता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है। Course is good, but unfortunately I am unable to attend the classes properly from 1st September and missing many things. ये तो अपने बारे में लिख दिया आपने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी से आप रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ? In metric spaces course myself improved how to write the proof and clear the concept and understanding book easily. अब हाँ, मेरा एक उद्देश्य ये भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एमएससी पास होगी होती है, बुक पढ़ना जानते ही नहीं है। मैं आपको ये सिखा दूं कि सीखना कैसे है इंडिपेंडेंटली। ओके, मतलब ये मैं सिखाना चाहता हूँ हर कोई मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को, वो यहाँ आए तो वो खुद सीख जाए कि हाउ टू लर्न इंडिपेंडेंटली, मतलब मैं खुद बुक से कैसे सीखूं। ठीक है, अब बार बार आपको मुझसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे यहाँ पढ़ के जाएंगे हर मैथमेटिक्स को, आप उच्च गणित की पुस्तकें जब पढ़ रहे होंगे ना, उनको खुद ही सीख पाएंगे आप, ऐसे मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा, ऐसा मेरा उद्देश्य रहता है। ठीक है, इसलिए कहता हूँ कि आप ये भी पढ़ें। ठीक है सर, आपने कोर्स को बहुत शानदार मैनर से पढ़ाया। सर, जो आपने असाइनमेंट में दिया ऐसा हर पेपर में दीजिएगा, यही बेस्ट है। बिल्कुल जी, ऐसा अवश्य करेंगे, ऐसा करता ही हूँ। Although I did metric space in MSc, but never had to courage to continue the course due to difficulty in understanding. अच्छा, but the way Lalit sir taught, I tried to give a chance again, and it worked. I started to gain confidence that I can also do it. However, I'm a little slow in learning many times. I was lectured 2-3 times, but every time I got to know more and more about the particular topic, still I'm progress, and thanks to Lalit sir for all this. It's a great learning experience. It was good. The course helped me to solve problems, uh, metric spaces questions quickly. This is very good course. I had read about the metric spaces earlier, but here I came to know many new concepts that I did not know before. We also did assignment which made me feel less fearful about metric spaces. Since there were a lot of questions in those assignment, I felt that I was actually doing something. However, in the last two assignment, I was not able to follow as much because the concept went really deep. I think some of the concept are directly from function analysis. अच्छा, ठीक है, वो मेट्रिक स्पेस की ही बेसिक वो मतलब फंडामेंटल थ्योरम्स हैं, अर्जेला-स्कोली थ्योरम, बेयर कैटेगरी थ्योरम, एंड कौन सी है, बेनेक कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल। ठीक है, तो वो अभी फंक्शन एनालिसिस में यूज होंगी, बेयर कैटेगरी थ्योरम वगैरह, जब भी हम फंक्शन एनालिसिस का कोर्स पढ़ेंगे तो आप एक बार धीरे धीरे देखेंगे तो चीजें पकड़ में आने लगेंगी। ओके, पहले मैं मैट्रिक स्पेस पढ़ा था, पर उन्हीं अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और ना ही क्वेश्चन को सॉल्व होते थे, पर अब ये कोर्स करने के बाद बेहतर तरीके से समझ आया, और क्वेश्चन भी होने लगे हैं। सबसे ज्यादा हेल्पफुल असाइनमेंट रहा है, और भी प्रॉब्लम सॉल्व करने थोड़ी दिक्कत होती है, पर अब धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। ओवरऑल ग्रेट एक्सपीरियंस, थैंक यू सर। ये कौन है, अमन तो नहीं है? अच्छा, नहीं नहीं, कोई और है, नहीं कौन नहीं है? नहीं तुम अमन, तुम्हारा आ गया? नहीं नहीं नहीं, मेरा नहीं है, मेरा हो गया मेरा। अरे हो गया, ठीक है ठीक है। It was amazing. I had zero confidence in this topic, but sir made it really easy. All the assignment questions were solved in detail, and every doubt was addressed
Boretly. Okay. Overall, a nice, well-structured course. Although I haven't completed it yet, but I have read so far from that I can tell course content was very well. Course content was well structured and comprehensive, covering key concept with clarity and the way you teach, making complex topics easy to understand. And you summarize at the end of lecture is very nice. Thank you so much, sir. Extensive problem solving is the best part. बाकी और सोचना पड़ेगा. ठीक है ऋतुराज. हाँ सर, मैं ही हूँ। चलो ठीक. So the lecture series of metric space is not less than a thriller web series. Hi, web series. अच्छा. If I deeply think, everything which we find in a movie already in the lecture series. बात तो ठीक है. सलोनी है सर। सलोनी है. बिल्कुल नहीं। हाँ, वो बोल रहा था ना, मूवी की तरह देखता हूँ लेक्चर को। है movie? मैं मूवी के बाद मैं लेक्चर देखती हूँ भले ही, बट वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखती हूँ मैं। सलोनी नहीं हो या नहीं हो ये बताओ. पॉइंट टू द बात तो. नहीं, मेरा इसमें अच्छा. सिर्फ एक एक्सपीरियंस, एक ही लेटर का फीडबैक मैंने दिया था, वो था गुड। अच्छा बस गुड. बात खत्म। सारी बात तुम वैसे भी सारी बात सलोनी ने कोर्स में कर ली है तो कुछ बचा नहीं है फीडबैक में, है ना सलोनी? नहीं सर, मैंने उसका दिया है ना कि अरे चलो. आप ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस में क्या है, उसमें भी दिया है, उसमें लिखा है मैंने। अरे चलो ठीक है. The first two classes introduce us with the basic definition and theorem, just like the character introduction and story building. Okay. In thriller web series we find mystery. ये दो लोग एक ही हैं या अलग अलग हैं? वेब सीरीज. वेब सीरीज मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा वेब सीरीज देखते हो. कम करो और यहाँ एक मैथमेटिक्स की वेब सीरीज चालू करो. ठीक है. अच्छा ये वैसे ही मजाक के लिए. हाँ चले देखते हैं क्या लिखा है आपने. इन थ्रिलर वेब सीरीज वी फाइंड मिस्ट्री, सिमिलरली मिस्ट्री कम टू अस एज एन असाइनमेंट. ओके ठीक है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. जैसे ऐसे होता है ना, कोई वेब सीरीज चलती है, हमें पता नहीं चलता इसके बाद क्या होगा, इस तरीके से. सिमिलरली मिस्ट्री कम टू अस एज एन असाइनमेंट आफ्टर क्लासेस. इफ वी सॉल्व दिस दैट गुड, अदरवाइज सर अनफोल्ड द मिस्ट्री इन द नेक्स्ट क्लास. ओके गुड. अच्छी उपमा है, आपने अच्छी उपमा दी है. ओके. सम ऑफ द क्वेश्चंस आर इजी टू सॉल्व व्हिच इज इनफ टू मेक अस स्माइल, which we can relate to comedy scenes. Okay. Some of the questions are, oh नहीं नहीं ये एक ही है मुझे लग रहा है ना. अच्छा अच्छा ये तो एक ही है. ये पूरा इन्होंने गैप गैप देके पढ़ा है तो ये एक ही है इतना पूरा है. इसको ध्यान से पढ़ो. इन्होंने स्पेस स्पेस देके दिखा है ना. In thriller web series we found mystery, similarly mystery come to us as a अच्छा. Some of the questions are easy to solve which is enough to make us smile, which we can relate to comedy scenes. बिल्कुल सही बात है. Some of the questions are too tough to solve, which we can relate to depressing scenes. Okay, so just sit, relax, and enjoy the lecture series at full attention, just like we see a movie without thinking enough about the exam syllabus to get the full taste of the lecture series. बिल्कुल अच्छे आपने उपमा अलंकार का अच्छा प्रयोग किया है. ओके अच्छा है. बिल्कुल आप तो कवि निकले. सर आज पता चल रहा है कि क्लास में बहुत सारा मतलब क्रिएटिव बच्चा है. मतलब कोई बोलता नहीं लेकिन लिखा तो बढ़िया है सबने. हाँ कुछ लोग वो व्यक्त नहीं कर पाते ना सारा सारा. अब ये सब कुछ पता चल रहा है कैसे कैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में. आप सभी लोगों को केवल गणित के अलावा क्या क्या सीखने को मिल रही है. देखो उपमा अलंकार सीखने को मिल रहा है ना. और ऊपर भी देखा आपने एक अच्छी उपमा दी थी, पिद्दी पहलवान ये वो सो, है ना. तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है. तो एक से एक हैं. देखो अभी देखते हैं. एज बिफोर आई हैड नॉट स्टडीड metric spaces and used to fear from it when taught it here. Now I feel it's easy. Now I thanks to Lalit sir who taught everything from basic to top. ओके यही मैं बोलता हूँ तो ऐसा उद्देश्य मैं पूर्ण कर पाया, इसके लिए मुझे प्रसन्नता है. चलिए. Overall, the course was very insightful and engaging. The instructor made many complex topics easier to understand. The assignment was thought-provoking. Through that, I think I have made significant difference than before in understanding the problems and solving them correctly. Some examples and questions regarding many parts were simple
equally beautiful how they are proceeding. And lastly, the instructor made the environment very enjoyable for doing math throughout this course. Okay, very good. Sir, I am not starting the course yet, but I have my full faith in you that the course will be outstanding. ठीक है, चलिए अब कितने लोगों ने 5 स्टार दी? अरे बड़ी अच्छी रेटिंग गई है, 4.78। क्या बात है, वो 36 लोगों ने 5 स्टार दिए, मतलब आई कांट बिलीव इट। क्या बात है। ठीक है, मुझे विश्वास कराने के लिए अगली बार कम मत कर देना। हाँ, रेटिंग वही रहनी चाहिए, मैं सुधार करूंगा। अच्छा, आपको विश्वास नहीं होता, हम दिलाते हैं आपको विश्वास। आप लोग शक्तिमान हो। ठीक है, चलो एक 3 स्टार, इससे नीचे कोई नहीं। ओके, चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब आपको डिड द टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजीज टॉट इन द क्लास इंप्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग? यस, सारे लोग यस ही बोल रहे हैं। नो, ओके, 2 लोग नो भी बोल रहे हैं। तो ठीक है, आप दोबारा करेंगे तो आप अवश्य कर पाएंगे उसको, रिकॉर्डेड देखना। ठीक है, ज्यादा लोग समझते हैं यस, 38 लोग। हाउ हेल्पफुल वर द असाइनमेंट इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स? वेरी हेल्पफुल, 97%। समवट हेल्पफुल, 1%। एक आदमी विरोध में खड़ा है, तो देख लो। What was the most valuable thing you learned in this course? Got to know some things that I have never thought of. Some topics were taught very interestingly. How to think and approach problem with basic concept. What I liked most in this course was your teaching way. Each topic's theory was explained thoroughly and clearly, followed by assignment, giving us time to think on our own. During discussions, you teach us the correct approach, which helped me learn new ways to tackle questions, understand how to apply concepts effectively, and also taught us how to firstly think about question and then how to write a proof rigorously. The step-by-step method made in studying enjoyable and highly productive. I'm happy to learn about open sets, closed nets, about GLNR, SLNR, etc. Bare category theorem and its application. कौन है भाई, किसको अच्छा लगा है? चलो, so how to think and how to approach proofs. I learned many new concept. How to prove things easily. अच्छा, आप थोड़ा अलग अलग ही पढ़ते हैं। हाँ, I learned about the concept of contract complete. इसको आप लोग सभी पढ़ लो, जो मुझे लगेगा पढ़ना चाहिए। ठीक है। Approaching problems using different kind of things in metric spaces, and intent grew to solve unusual problems in metric space, and most importantly, lessons on metric subspaces with Frobenius norm and exploring their topological properties was very exciting. And I used to have rigorous problem in dealing with such problems. Now it's becoming easier for me. अमन, ये तुम तो नहीं हो? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। अरे सही पकड़ा, मतलब शब्दावली बच्चों की देखो। How to think, how to connect different topics and generate nice proof of solve problems. सर ये बताओ किसने लिखा है? ये नहीं बता सकता मैं। ठीक है, so importance of right guidance. Each and everything was valuable for me. ग्राफ वाली explanation है, proof how to use theorem in problem, thinking proofs by pictures, approaching problems, Argela Ascoli lemma proof and theorem, everything, p-adding metric and detailed things about Baire category and Argela Ascoli. ये कौन है? गौरव तो नहीं है? है क्या? गौरव दूसरा है, तुम ही हो सच में? अच्छा, आवाज ही नहीं आती तुम्हारी। सो द फंडामेंटल थ्योरम इन कंप्लीट मैट्रिक स्पेसेस। अच्छा, ये सब इन्होंने नहीं सीखा, नया सीखा। प्रूफ्स, proof of certain theorems plus how to apply it. What was the most valuable thing you learned in this course? सर को, सर मतलब आगे को लिखना भूल गए या कह रहे हो कि सर ही इंपॉर्टेंट है? ये तो कौन भी नहीं बता सकता किसने लिखा है। अच्छा, ये सर ठीक है, मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ भाई, साफ बात है, सही बात है। हाउ टू राइट
बट मुझे सीखा जा सकता है। अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो हाउ टू लर्न एन आंसर प्रॉपरली, राइट, ये भी मैं सिखाना चाहता हूँ, तो आप सीखे, अच्छा है। इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट, explore different matrices which were unknown to me before the class. First, computation of metric space. Second, Baire category theorem. Third, space of matrices and उनके क्वेश्चंस। फोर्थ, पूरा कोर्स ही मस्त है, तो देख लो। अब सारे लोग पढ़ लो, कुछ अलग होगा तो वो मैं पढ़ूंगा, ओके। स्मॉल डिटेल्स विच आई यूज टू ओवरलुक इन डूइंग प्रूफ्स अर्लियर, ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीइंग सेट्स इन C01 with sup metric applying Argela Ascoli. New concept are deep, new concepts and deep concept. अच्छा, GLNR, ONR, all these types of examples, ठीक है। मैं बोलता था ना सबको थोड़ा सा इनमें भय लगता है, अब वो चीजें इजी होंगी। C01 इज नॉट घोस्ट। पहले C01 से डर लगती थी, मतलब C01 अब अच्छा लगा है। तो ये कौन C01 घोस्ट नहीं है, डरो मत। हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम्स, ओके। आई थिंक अर्जुला एस्कोरी थ्योरम और इमोजी भी बनाया है। More importantly, I have realized that you don't have to be genius to clear the exam. Most people fail simply because their preparation is below the required standard. ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बोली है, ठीक है। ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, इस रिव्यू को हल्के में मत लेना, जो लिखा है दोबारा पढ़ लो। Most people fail simply because their preparation is below the required standard. मैं आपसे कहता हूँ ना कि ऊपर की तैयारी करो, इसलिए भी बहुत सारे फेल हो जाते हैं कि उस तरीके की तैयारी ही नहीं करते हो। सो ओके, ये इस्माइल, ठीक है। I don't have vast knowledge in metric spaces except general definition and general theorems to, so everything in the class is valuable for me, especially the proofs of Baire category theorem and Argyll-Ascoli theorem. Knew how to check completeness, connectedness, complete. Okay, I have learned that for good problem skills and proof writing, I have to give time more, and through this course I think I have improved these things better, and mostly I have learned some theorems and examples like Argyll-Ascoli theorem, p-adic metric, Baire category theorem, which I have not done before throughout. Truly everything was valuable. अब सजेशन क्या दिए हैं देखते हैं, ओके। सजेशन से भी है, अभी तक तो प्रशंसा चल रही थी, अब निंदा की ओर भी बढ़ते हैं। निंदा नहीं, इसको आलोचना कहते हैं, और आलोचना और निंदा में अंतर होता है, हाँ? ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हें पता है या नहीं है, या तुमको एक ही लगती है दोनों चीजें? हालांकि मतलब डिक्शनरी में एक ही अर्थ दे सकती है, वैसे अगर तुम सोचो तो थोड़ा अंतर होता है। आलोचना माने आप कर सकते हो कुछ भी, जैसे आलोचना निंदा नहीं होती, ठीक है। उसके विषय में मैं आगे नहीं जाता हूँ, चलो पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है, नो कोर्स शुड बी फॉलोड एट कांस्टेंट स्पीड एंड नॉट टू रश टुवर्ड्स द एंड। ओके, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए, परंतु ऐसा है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं उत्तर दे देता हूँ। लास्ट में जैसे हमने करेक्टेडनेस असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिला, तो इसलिए आपको यह अनुभव हुआ हो सकता है कि वो थोड़ा जल्दी हो गया हो, ठीक है। क्योंकि हम, जैसे कि मैंने बताया कि 12 तारीख से हमने प्रारंभ किया था, और आगे के फंक्शन एनालिसिस वगैरह भी हमने सीखने, उसको ध्यान में रखते हुए असाइनमेंट के लिए कम समय मिला, या लेक्चर्स जल्दी हुए, मतलब डे बाय डे हुए ना, नहीं तो असाइनमेंट बाद में डिस्कस होते थे, इसलिए ऐसा हो सकता है, ओके। नो, एवरीथिंग इज फाइन। नहीं गुरुदेव, सजेशन आपको नहीं, सजेशन तो आपकी हम लोगों को चाहिए गुरुदेव, क्या बात है। सो सम मोर एग्जांपल्स लाइक p-adic metric, ठीक है। आई फील द क्वेश्चंस ऑन असाइनमेंट अ बिट टफ, सो असाइनमेंट क्वेश्चन शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टफनेस सो दैट वी कैन सॉल्व। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो असाइनमेंट, हाँ सर, ये जो ऊपर वाला सजेशन था ना, ये मेरा सजेशन था, सब कोई ढूंढ रहा था। ये ना वाला ना 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 ना, ये नहीं, some more examples like p-adic metric, this was my suggestion, अच्छा सब अच्छा कोई ढूंढ रहा था, that's अच्छा, it. ओके ओके ओके। सो आई फील द क्वेश्चंस ऑन असाइनमेंट, हाँ मैं इसके बारे में बोला था ना, असाइनमेंट में क्वेश्चन टफ ही होने चाहिए, बहुत टफ होने चाहिए, और असाइन जो प्रॉब्लम्स हैं इजीली वो तो आपको बुक में मिली जाएंगी, तो मैंने अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स कलेक्ट करके आपको दी हुई थी, इसलिए ओके, चलो ठीक है। नो नथिंग, इट्स प्रीटी इनफ गुड टू एक्सप्लोर। Old recorded lecture if provided beforehand, then student will be ready for class beforehand and will be able to grasp
मच मोर इंटरेक्ट मोर इजीली। ओके, बिल्कुल ऐसा होगा अभी से, क्योंकि मैट्रिक स्पेस का कोर्स मैंने इस बार पहली बार रिकॉर्ड किया। ठीक है। नो सर, एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एक डाउट क्लास करनी चाहिए जिसमें सारे स्टूडेंट, नॉट कंपलसरी बट जो चाहें लिखा है, पर इनका अर्थ चाहें है, क्योंकि हमें लगता है कि हम समझ गए हैं, बट कोई और डाउट पूछता है तो सिंपल सिंपल डाउट सडनली माइंड में आते हैं, तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके अलग अतिरिक्त संदेह कक्षा की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ना प्रत्येक कक्षा में मैं आपसे क्या पूछता हूँ कि आप मुझसे कुछ भी पूछ लें लेक्चर के बाद में या लेक्चर के एंड में होके, मुझसे जो पूछना चाहें, और 24 घंटे आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप में लिख सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हमें अलग से एक कक्षा देने की आवश्यकता ही नहीं है, तो क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। समझ गए? आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो ऐसा आप ध्यान रखें। हाउ कैन वी गिव यू सजेशन सर? ओके, अखन किचू ये पढ़ो तो समन्विता क्या है। अच्छा रुको रुको रुको, एक मिनट एक मिनट, इसको कोई भी पढ़ो तो, कोई भी। এখন কিছু মাথায় আসছে না, পরে ভেবে বলবো। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि अभी दिमाग में कुछ आता नहीं है, पूरे वो भी बोल हाँ दो, हाँ बाद में बोलूंगा या बोलूंगी ना। हाँ हाँ हाँ, तो सोच बंगाल, सोच के बाद में बोलूंगी। हाँ हाँ हाँ, बोलूंगा भी हो सकता है। हाँ, ये बंगाली की बस थोड़ा सा यहाँ पर कमी है, पता नहीं चलता है। बोलूंगी या बोलूंगा, ठीक है। जैसे मैं कई बार বেঙ্গলি যে জেন্ডার জেন্ডার নিউট্রাল हाँ ল্যাঙ্গুয়েজ है বেঙ্গলি। हाँ, किसी ने पत्र लिखा हो कि अपने बारे में कुछ बता रहा हो, तो तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप उसको देखते नहीं कि वो कौन है। अगर वो अपने बारे में बात करे, मैं ऐसा करूंगा या राइट, ऐसे तरीके से। चलो, इट इज गुड इनफ। द पेस कुड बी बिट स्लोवर। नहीं, इससे अगर स्लो होगा तो फिर हम बहुत पिछड़ जाएंगे और हम आगे के टॉपिक नहीं सीख पाएंगे। ओके, तो इसलिए ये आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने लगभग इसको 36 दिन में पूरा किया है, ये ध्यान में रखें। ऑल्दो देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट बट आई डिडंट फाइंड एनी पर्टिकुलर फ्लो। क्या अच्छी बात है। ऑल्दो कोर्स मेक्स यू फील इजी towards competitive questions, but I still believe doing more exam questions during classes can make you feel even more comfortable towards exam। हाँ, इसके बारे में जैसे कि मैंने कहा, एग्जाम के क्वेश्चन जो हमने लेने थे वो तो ले लिए। अब जो एग्जाम के क्वेश्चन से हैं हम वो टाइम टू टाइम लेंगे। ओके, जैसे TFR के हैं, सारे क्वेश्चंस करेंगे पूरे, जितने 2010 से 2025 तक के, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वो सारे मैंने करके रखे हुए हैं, और वो मैट्रिक स्पेस की जो अभी आपको साइट में लिस्ट मिली है वहां पे ऐड भी हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उनको बहुत ही डिटेल में करके हुए रखे हुए हैं। और जो उसके अलावा अभी तक मैंने जो प्रॉब्लम्स आपको कराई ना, अभी उन क्वेश्चंस को आप देखोगे तो वो इजी फील होंगे, तो वो टाइम टू टाइम हम करते रहेंगे। ठीक है, ताकि इससे एक लाभ ये होगा, अभी हम उनको कर लेंगे तो अभी जैसे आपने मैट्रिक स्पेस पढ़ा है तो आपको वो याद भी रहेगा। जैसे अगले महीने कुछ क्वेश्चन करेंगे, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन में ऐसे कराते रहता हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस ना, उससे क्या रहता है, सारी टच बनी रहती है। मतलब कंबाइंड प्रॉब्लम कराता हूँ, जैसे ये मैट्रिक स्पेस की है, ये अलजेब्रा की है, इस तरीके से आप भूलते भी नहीं। ओके, तो ऐसा मेरा मतलब वो रहता है तरीका। सो प्लीज कोऑपरेट विथ ऑल द स्टूडेंट्स सर। मे सर आर देयर हु वांट्स टू टॉक और डिस्कस हिज प्रॉब्लम, बट ड्यू टू साई और फेयर ही डजंट। ओ, ऐसा होता है। परंतु ऐसा मैंने हमेशा प्रयास किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर शर्माता हो, घबराता हो, तो मैं उनसे हमेशा बात करूं, और मैं ऐसा करता भी हूं। अलग से आप मुझे मैसेज करो और मैं तुम्हें बात करूंगा, थोड़ी देर हम बात भी कर लेंगे। ठीक है, अलग से मीटिंग समय, तो आप फिर आप शर्माएंगे भी नहीं और घबराएंगे भी नहीं, मुझे बताना आप। ठीक है, ओके। अरे रिएक्ट तो करो। ओके, अरे यार मुझे लगा मैंने वो पकड़ लिया जो आदमी है, उसने रिएक्ट किया, तो तुम सारे लोगों ने रिएक्शन करके वो कर दिया। सब बराबर सर कर आपने दिया। नहीं पकड़ा है, क्योंकि पहला रिएक्शन मैंने ही दिया था। और तुम ही होए, तुम चाहती हो कि पकड़े ना जाऊं। और लेकिन नहीं ऐसा है सर, नहीं कि बिल्कुल। तुम, सलोनी तुम और शर्मिली, बाप रे, ये कोई दूर दूर का नाता नहीं है ना। सर पहली बार हाँ। ये पूरे मीटिंग के दौरान किसी ने बहुत ही सही बात मेरे बारे में कही है। अच्छा। अदरवाइज लोग आज दिया और वैभव के जेस्चर्स बिल्कुल अलग थे। क्या? सर आज समझा, गेस करने की कोशिश की,
बट ये जेस्चर जो सर आपने मेरे लिए बनाया ये बिल्कुल सही है मेरे लिए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। बस लास्ट में थोड़ा जल्दी कर दिए आप, बीच में थोड़ा कर सकते थे तो लास्ट में जल्दी नहीं करनी पड़ती है, बाकी तो सब ठीक ही था। अच्छा चलो ठीक है, आप रिकॉर्डेड देखना, ओके। तो आपको लगेगा फिर ठीक ही था, क्योंकि वो जो आप नए नए पढ़ रहे थे ना एर्जेरा-एस्कोली थ्योरम, उसमें थोड़ा सा प्रूफ से हैं, चीजें हैं, तो पहले थोड़ा सा एक आध बार में दिक्कत होती है, तो ऐसा दिखाई पड़ता है। तो आप ऐसे देखना उनको दोबारा से, ओके। गिव एटलीस्ट 3 days टू डू असाइनमेंट। हाँ मैं ऐसा कह रहा था ना, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि असाइनमेंट के लिए इस बार मैंने अंत में आपको ज्यादा दिन इसलिए नहीं दिए थे करने के लिए, एक ही दिन इसलिए दिया था क्योंकि हम आगे जो कोर्सेज फंक्शनल एनालिसिस सीखनी है, टोपोलॉजी सीखनी है, उसके लिए हमें विलंब हो जाएगा फिर, ओके। और लेकिन इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं जो कर सकता था वो मैंने किया। जब भी ऐसा हो, आप असाइनमेंट के लेक्चर जो डिस्कशन है उसको बाद में देख सकते हैं। जैसे कनेक्टेडनेस है ना, उसका असाइनमेंट दिया हुआ है, अभी भी आप उसको ट्राई करो, अभी वो अपलोड होगा, अभी देर में ही अपलोड होने वाला है वो, राइट। बस अर्जेरा एस्कोली का मैंने एकदम डिस्कस कर दिया था, ठीक है। तो एवरीथिंग इज गुड, इट इज बोथ कॉम्पैक्ट एंड कंप्लीट। ओ, इन्होंने कहा चलो सर मैट्रिक स्पेस की लैंग्वेज में आपको बता देते हैं, ठीक है। इट वुड बी हेल्पफुल इफ यू कुड गो अ लिटिल मोर स्लोली, बट एज वी नो देयर इज नॉट दैट मच टाइम। हाँ ये इन्होंने खुद भी बोल दिया, तो ठीक है। नो सजेशन, मोर एंड मोर एडवांस कोर्सेज शुड बी केप्ट रिकॉर्डेड, और उससे एडवांस क्लासेस में पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल होगा, ऐसा मैं चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ अभी आपको फंक्शनल टोपोलॉजी के बाद में कम्यूटेटिव अलजेब्रा, अलजेब्राइक नंबर थ्योरी, वो सब भी पढ़ाऊंगा अगर आप वहां तक पहुंच पाओगे, ठीक है। और जो भी मैं कोर्सेज जानता हूँ वो सब। Instead of packing the words too tightly, sir could perhaps add a few extra pages in between more often। अच्छा ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि मतलब थोड़ा सा और डिटेल में नोट्स में लिखें, तो फिर अब देरी भी हो जाएगी। वो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। आप लोग उसको क्या करेंगे, फिर डिटेल्स करेंगे। लाइव क्लासेस में ज्यादा एक्टिव सोच पाते हैं, आई मीन थोड़ा प्रेशर लगता है तो जल्दी सोचते हैं, सो आई विल प्रेफर मोर लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस तो रोज ही हैं, ओके। डेली ही लाइव क्लास है, आज ही बस क्लास नहीं हो रही है। तो द इनिशियल क्वेश्चन ऑफ ईच असाइनमेंट आर इजी देन द लास्ट वन, but in some classes sir solve the initial questions fully and give hints the last question, so please if possible give hints for the initial question and solve fully the last ones। हाँ देखो, जैसे कि मैंने पहले पहले असाइनमेंट में सारी क्वेश्चंस की स्टेप वाइज सॉल्यूशंस लिखे थे, अभी भी मैंने जो कठिन क्वेश्चन है उनमें लिख के दिया है, लेकिन बात बात के कोर्स के अंत तक आने तक ऐसा होना चाहिए कि अब मैं आपको हिंट्स दूं और सॉल्यूशन की वो चीजें बताऊं कि ऐसे ऐसे स्टेप्स हैं, और आप खुद ही डिटेल्स फिल कर पाए, क्योंकि वही उद्देश्य है कोर्स का कि आप लिखना सीख पाए। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं लिखूं और आप वैसे ही लिखें, नहीं, मैं आपको सिखाऊं और फिर आप खुद भी लिखना सीख जाएं, ऐसा उद्देश्य है मेरा, समझ गए। तो इसके लिए जब मैंने बीच में कोई चीज छोड़ता हूं तो उसका उद्देश्य यही होता है, अन्यथा मैं लिख तो सकता ही है। चलो, at the time of solving assignment problem, it's a request to instructor do not go fast because one who has not idea of problem solving as before face difficulties। हाँ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल पहले पहले ऐसी चीजें लग सकती हैं, लेकिन मैंने जैसे आप कहा, आप एक दो बार चीजों को देखेंगे, रोक के अपने पेज से चलेंगे तो फिर आप उस गति में आ सकेंगे, ठीक है। और वो आपके लिए भी लाभदायक होगा। और जो हमारी गति है वो बहुत अधिक तीव्र नहीं है, आपको ऐसे अभी तीव्र दिखाई दे सकती है अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। चले, नो आई हैव नो अदर सजेशंस फॉर this time span, this is far better, this is far better, ठीक है। मैं इतना ही समझ पा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। मतलब ये भी जो भी है अच्छा ही उन्होंने लिखा है। तो सजेशन मोस्टली कुछ ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ा जिसपे आई शुड वर्क ऑन, ओके। चलो फिर मैं पढ़ूंगा इसको और एक बार। तो यहाँ तो आपने पढ़ ही लिया, ये सब तो पढ़ ही लिया, राइट, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। कि अब इसको पढ़ लेते हैं। वाज द इंस्ट्रक्टर अप्रोचेबल, रेस्पेक्टफुल एंड ओपन टू क्वेश्चंस एंड डिस्कशन। एंड ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि जो भी आपको पढ़ा रहा है उसको आप अप्रोच कर सको, ठीक है। रेस्पेक्टफुल एंड ओपन टू क्वेश्चंस, वो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे सके, क्योंकि अगर कोई भी शिक्षक आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा तो फिर बात नहीं बनेगी, राइट। तो इसके बारे में आपने क्या लिखा है उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसको यहाँ से पढ़ते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्या लिखा है लोगों ने, देखते हैं। तो ये अंत, यस, 19 लोगों ने लिखा है यस। इस बारे में वो सोचते हैं बिल्कुल हाँ, यस डेफिनेटली जोर दे के लिखा है, ठीक है। एक ललित सर, वन ऑफ द बेस्ट टीचर आई हैव एवर सीन। सर डायमंड है, डायमंड,
अरे वाह, हीरे से तुलना कर दी आपने। अच्छा, yes of course, yes, yes. Of course, very helpful and hardworking person, inspired by his problem solving process, getting confidence than before. बस थोड़ा टाइम दीजिए। थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल आपको टाइम है। yes, he is always approachable, respectful and fantastic during teaching. I can feel his passion about teaching through my screen. Oh yes, sir is always very respectful to everyone and available at personal level to clear the doubts at any time. Very much. Definitely. Yes. Yes, sure. He is very nice on that part. Okay, ठीक है, आपने ऐसा अनुभव किया, बहुत अच्छी बात है। Yes, sir is very kind. He listen the doubt whether it's easy or silly, reply each and every question. Yes, even if you have, ये जैव लिखा है लेकिन शायद have लिखना चाहते हैं। If you have any doubt left in the classes, you can message him personally that and he will help you. Okay, of course, easily available. Instructor behavior is very good. I respect his teaching skills. Yes, always ready to clear doubts. Yes, very helpful throughout the course. Yes, very helpful and open for discussion. Yes, Lalit sir guides each student as per her ability. This way of learning develops confidence among students. तो इस तरीके से इस कोर्स का एंड होता है और आप लोगों ने सभी की प्रतिक्रियाएं पढ़ी, बड़ा अच्छा लगा प्रतिक्रियाओं को पढ़कर। तो इस प्रतिक्रिया पत्र को देखकर मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मैं ठीक कर पाया, मतलब मैंने जैसा प्रयास किया था मैं आप लोगों को संतुष्ट कर पाया, ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है। और फिर भी आगे इसी तरीके से सजेशंस आते रहेंगे। ठीक है, आप लोगों को इंग मैथमेटिक्स में अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल यह फील आनी चाहिए कि आप किसी, मतलब जैसे आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं ऐसा लगना चाहिए, सीख रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोचिंग में पढ़ रहे हैं ना। तो इंग मैथमेटिक्स इज नॉट कोचिंग, ओके, ये मैं आपको बता दूं। मतलब यहाँ पे ऐसा फील आपको होना चाहिए, ओके। वो मैंने लिखना चाहिए था इसमें कि इंग मैथमेटिक्स में आपको कैसा लग रहा है। सो ये आपको बताना चाहता हूँ, अच्छा लग रहा होगा सभी को, आपके रिएक्शंस देख के लग रहा है। चलिए तो यही स्टॉप कर